Yes, well, good morning, students. So, class 11th, today we are going to start with our chapter number 1, that is sets. बच्चे देखो set chapter जो है ਤੁਹਾਡੀ NCERT book ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਲਾਸ +1 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ NCERT ++1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸੈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 1.1 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 1.1 ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ just started तो what is set सब तो पहले ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ set ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ set is a well defined collection of distinct objects like in the sense ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ set ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ well defined collection ਹੈਗੀ ਹੈ distinct objects ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ object ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ things ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਪਸੰਦ ਹੈ 5 ਬੈਸਟ 5 ਐਕਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੈਸਟ 5 ਐਕਟਰਸ तो उन्हें मैंने कहा था 5 एक्टर्स से मान लो नाम दस दिते कोई भी अभिषेक बच्चन पसंद है मैनू शाहरुख खान पसंद है लाइक मैनू शाहिद कपूर पसंद है मैनू जॉन इब्राहिम पसंद है या एक होर लै लो कोई भी एनी ऑफ दी कुछ भी पसंद है ऋतिक रोशन पसंद है ठीक है इदा लै लिया उस तो बाद मैं बी एक होर बच्चे खड़ा किया उन्हें मैं कोई होर पूछा उन्हें होर कोई 5 एक्टर्स के नाम दस दिते ना लेट इट बी कोई ने कोई होर 5 एक्टर्स इस तरीके के नाम दस दिते ठीक है तो एक कलैक्शन बन गई मेरे को ठीक है जी ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਰਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਵੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ AEIOU ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਲੈਸ ਜਿੰਨੇ ਆ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 3 5 7 20 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਸੈੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੱਸੋ ए कोई बच्चा सीगा ए कोई स्टूडेंट सीगा उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैंने 5 एक्टर्स के नाम दस दिते कोई बी बच्चा सीगा उन्हें कुछ इदा है ना कुछ होर कोई 5 एक्टर्स के नाम दस दिते इन्हें कोई होर 5 कहे इन्हें कुछ होर 5 कह दिते ठीक है ना मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि किसी पर्सन को कोई होर एक्टर पसंद हो सकता दूसरे पर्सन को कोई होर एक्टर पसंद हो सकता अगर इदां दी कलैक्शन जिहड़ी आंदी है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उस टाइप की कलैक्शन नूं आपां सैट नहीं कहांगे नॉट अ सैट ठीक है नॉट अ सैट कि पर्सन टू पर्सन जी है कलैक्शन वैरी नहीं करनी चाहिए कि जोड़ा एक सैट तुसी दस दिता वो वैल डिफाइंड होना चाहिए हुण देखो एक मैं अगर एग्जाम्पल देवां मैं अगर तुहानूं कहनी है कि ऑड नंबरस मैनूं दसो ठीक है ऑड नंबरस मैनूं दसो 1 तो लैके ते 10 तक ऑड नंबरस मैनूं दसो किहड़े किहड़े हुंदे ऑड नंबरस ठीक है तुसी मैनूं दसोगे है ना ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 1 3 5 7 9 ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡ ਨੰਬਰਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਆ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 1 3 5 7 9 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ
1 to 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 1357 ਹੁੰਦੇ। ਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਸੈੱਟ ਔਰ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ these 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਆਵਲੇ 3 ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਏ, ਓਨੈਸਟ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਰਿਪੀਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 1 3 5 7 9 ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 7 ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ 3 ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਿਪੀਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਟਿੰਕਟ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ, ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 1 1 1 1 1 ਹੈ ਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 1 ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਸਟਿੰਕਟ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਸੈੱਟ। ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ 10, ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 3 5 7 9, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਏ ਹੈ, ਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਈਦਾ, 1 3 5 7 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਔਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਮਾਲਰ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ 10 ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੌਮਾਸ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੈੱਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਵਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲਸ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਵੋਵਲਸ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 4। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, +-2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਓ,
की लिखोगे -2 तो 2 कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 करोगे तो सोल्यूशन दे विच या तो 2 आएगा या -2 आएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट पाई -2 एंड 2। हुण असीं इहनूं चैक कर सकते हैं कि सैट हैगा आ कि नहीं हैगा। चैक इट कि सैट हैगा कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन वैल डिफाइंड, तुसीं देखो वैल डिफाइंड हैगा वा। सैकेंड थिंग आपां करनी है कि इसे चैक करना कि डिस्टिंक्ट एलीमेंट हैगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलीमेंट चैक इट। वैल डिफाइंड का मतलब है कि परसन टू परसन वेरी तो नहीं कर रहा। जिवें देखो आ वॉवल्स ही लए आ, वॉवल्स तुसीं मैनूं पुछो मैं भी कहांगी AEIOU हुंदा। ठीक है, तुहानूं पुछां भी आएगा, किसी नूं भी किते भी पुछ लो, वॉवल्स जिहड़े आ मतलब यूनीवर्सली यही ही रहणगे, भी यही वॉवल्स आ। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 है, सोल्यूशन -2 2 ही रहेगा। ठीक है, परसन टू परसन वेरी नहीं करेगा, इसका आंसर यही ही आएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ वैल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट भी है, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी एलीमेंट। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो डिस्टिंक्ट। इट मीनस है कि बन रहा कलैक्शन है सैट है, दोनों की है सैट है। ठीक है जी। सो नैक्सट अगे आप करते हैं सैट नूं आपां रिप्रजेंट किदां करते हैं, दो तरीके नाल रिप्रजेंट कर सकते। इट इज़ रिप्रजेंटेड इन द 2 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज़ अ सैट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड वन इज़ अ रोस्टर फॉर्म और द टैबुलर फॉर्म। ठीक है जी। सैट बिल्डर फॉर्म बच्चे आप किस तरीके नाल करते हैं, सैट नूं आपां जदों बनाउण दे लई है ना कुछ फॉर्म गिवन हुंदी है, कुछ चीज़ गिवन हुंदी है। लाइक जिवें ए गिवन आ, एक सैट का नाम दे दिता आपां। ठीक है, इस तरीके दे नाल कर्ली ब्रैकेट पाई आपां एक्स नूं लै लैणे जनरलाइज फॉर्म दे विच आपां लिख रहे हैं। जनरलाइज फॉर्म दे विच किस तरीके नाल एक्स लिखते हैं, इत्थे इस तरीके दे नाल ना आपां कॉलम पाने इस तरह। ठीक है, कि आपां कहंदे कि एक्स की हैगा, एक्स एक कैपिटल लैटर दे विच लै लिया। आपां इहदी प्रॉपर्टी दस्सण लगे कि एक्स मैं लिया वा, बट एक्स की हैगा मेरे कोल, उहदी प्रॉपर्टी जिहड़ी अगे मैंशन कीती होएगी। ठीक है, उहदी प्रॉपर्टी कि एक्स की हैगा, एक्स की हैगा, एक्स इज़ अ ऑड नैचुरल नंबर स्मॉलर दैन 10। जिवें कि हुणे आपां इत्थे एक सैट बनाया सीगा ना 1 3 5 7 9। ठीक है ना, यह तो तुसीं एक सैट लिख दिता। ठीक है ना, बट सैट कित्थों बनया, किद्दां आया वाला सैट। ठीक है ना, ਉਹਨੂੰ इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ वर्ड्स ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ वर्ड्स ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫॉर्म ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ A ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ। A ਇਜ਼ ਅ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। एक्स अगे ਇਹਦੀ प्रॉपर्टी दसी कि एक्स की है, एक्स इज़ अ ऑड नैचुरल नंबर स्मॉलर दैन 10, कर्ली ब्रैकेट दे नाल है क्लोज हो गया। ए नैचुरल नंबर 10 तो लैस जिहड़े आ ऑड नैचुरल नंबर वो इत्थे लिख दिते। ठीक है जी, तो इस चीज़ नूं वर्ड्स दे विच एक सैट नूं कि सैट कित्थों बन रहा एक्चुअल दे विच ਉਹਨੂੰ इस तरीके दे नाल लिखण वाली फॉर्म नूं आपां कहंदे आ सैट बिल्डर फॉर्म। तो जिहड़ी ਇਹ वाली फॉर्म ऑलरेडी साडे कोल हुंदी है नंबरस वाली फॉर्म दे विच, ਇਹਨੂੰ आपां की कह दिंदे आ टैबुलर फॉर्म। दो चीज़ां हुंदियां सैट बिल्डर टैबुलर, या टैबुलर नूं आपां रोस्टर फॉर्म भी कह दिंदे आ, टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, इत्थे आपां भी लिख सकते हैं। सो एक कैपिटल लैटर है, यही वाले सैट नूं इस तरीके दे नाल अगर मैं लिखा तो किहड़ी फॉर्म हो जाती है, रोस्टर फॉर्म। अगर इसनूं इदां वाले वर्ड्स वाली फॉर्म दे विच अगर मैं लिखा तो किहड़ी फॉर्म हो जाती है, सैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ते टैबुलर फॉर्म बोथ आर द सेम। ये बाकी मैं तुहानूं दस ही दिता कि ए कैपिटल लैटर दे नाल आपां डिनोट करीदा, बाकी सारे इन्हां नूं की कहीदा एलीमेंट्स कहीदा, कॉमा दे नाल सैपरेट करीदा वै, कर्ली ब्रैकेट्स ही पाओगे। कोई भी मतलब जिस तरह अगर तुसीं मान लो इदां नहीं करना 1 2 3 4 ਇਹ वाली ब्रैकेट नहीं पानी, यह ब्रैकेट सैट नूं रिप्रजेंट नहीं करती, हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही पानी है। कर्ली ब्रैकेट का ही मतलब हुंदा कि तुसीं एक सैट रिप्रजेंट कर रहे हो। ठीक है, ऑलवेज यूज अ कर्ली ब्रैकेट्स। कुछ पॉइंट आ जिहड़े कि तुसीं नोट डाउन करोगे जिहड़े कि यूज़ होणगे इहदे विच। इन टैबुलर फॉर्म एलीमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, जिवें मैं पहले भी दस्सिया सीगा कि अगर रिपीट हो जाता तो वो सैट ही नहीं बनता गा। ठीक है ना, एलीमेंट्स जिहड़े आ रिपीट नहीं होने चाहिए। अगे एवरी अल्फाबैट एलीमेंट शुड बी ऑफ द स्मॉल लैटर्स। ਇਹਦਾ मतलब इदां है कि जिवें मान लो इत्थे मैं लिखे एवली एग्जाम्पल ली सीगी कि जिवें AEIOU लिखिया। ठीक है, मैं दस्सिया ना कि कैपिटल लैटर सैट का नाम रिप्रजेंट करने के लिए आपां यूज़ करीदा। ठीक है, बट अगर तुसी देखो कि मान लो तुसी इदा लिख दो B इज़ इक्वल्स टू AEIO एंड U। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ इस तरीके के नाल रिप्रजेंट नहीं करनी, मतलब तो यही है कि वॉवल्स ही लै रहे हो तुसी। ठीक है, मतलब वही रहिंदा है इहदा, बट असी जो रिप्रजेंटेशन जो रूल्स के अकॉर्डिंग आपां एक रिप्रजेंटेशन बनाई हुई है कि अंदर अगर तुसी अल्फाबैट वाले लैटर्स अगर मान लो कोई यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, दैन इट शुड बी एक ही होने चाहिए स्मॉल लैटर्स यूज़ करने, AEIOU स्मॉल लैटर्स यूज़ करने, कैपिटल वाला आपां सिर्फ उहदा नाम लिखण दे लई आपां यूज़ करना। ठीक है, इस तरीके इस चीज़ नूं आपां इहदी रिप्रजेंटेशन या कह सकते हो कि रिटन दे लई जो आपां करना ना उहनूं आपां याद रखना रिटन दे लई। ओके,
सो द नैक्सट थिंग इज़ लाइक इन्हों मैं दोबारा एक बार फिर दस देवां कि जिवें इत्थे लिखिया सीगा कि एक्स इज अ वोवल ऑफ द अल्फाबैट एलीमेंट्स ना, कि देखो एक्स की आगे एक्स एक सैट दिता गया, एक्स एक एलीमेंट है पर एक्स की है, ठीक है ना, एक की गिवन है, सैट बिल्डर फॉर्म गिवन है। सानू नैक्सट अगे बच्चे क्वेश्चन आएंगे, सैट बिल्डर फॉर्म उन्होंने दी होगी, तुसीं उहदी रोस्टर बनानी होगी, रोस्टर दी होगी, तुसीं सैट बिल्डर बनानी होगी, ठीक है। इस तरीके दे नाल ए सैट बिल्डर गिवन आ, वो कहंदे कि दसो किस तरीके दे नाल इहनूं रिप्रेजेंट करोगे। एक्स इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबैट्स, यानी कि तुसीं की लिखोगे AEIOU। मैं हुणे दस्सिया कि इहनूं इस तरीके दे नाल नहीं लिखना, AEIO इस तरीके दे नाल नहीं लिखना, ठीक है। दिस इज़ द राइट वे, ओके। एंड एक्स इज, देखो नैक्सट देखो एक्स की है, एक्स इज़ अ लैटर ऑफ द वर्ड स्कूल, स्कूल लैटर दे वर्ड्स, स्कूल एक वर्ड हैगा, ये लैटर्स लिखने हैं। दोस्तों की लिख सकते हैं ये लैटर्स, एस एक लैटर हैगा इहदा, सी एक लैटर हैगा इहदा, एच एक लैटर हैगा इहदा, ओ एक लैटर हैगा इहदा, एल एक लैटर हैगा इहदा, ठीक है। देखो बच्चे ये ओ जोड़ा दो बारी आ रहा, तुम कहोगे कि इतने दो बारी क्यों नहीं लिखा। अगर मैं इतने दो बारी लिखदा तो एलीमेंट स्टूडेंट्स की हो रहे इतने रिपीट हो रहे। एंड वी नो दैट कि जो भी आप सैट लिखना वो एलीमेंट्स नूं आपां की करना, रिपीट नहीं करना। ये एक बारी ओ लिख दिता इट मीनस इट इज़ इनफ, वो एक बार ओ आ गया इट मीनस वो सैट के इंकलूडिड हैगा वा, उन्होंने आप जिन्नी मर्जी बारी बाद में लिख सकते, रिपीटिड नहीं होना चाहिए। टैबुलर फॉर्म के कोई भी एलीमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। स्कूल एक वर्ड है, जिवें मैं हुण इत्थे लिखा लाइक अगर मैं कहां प्रिंसीपल, ठीक है ना, अगर मैं कहां कि हाँ जी ये तुसीं लिखने लैटर्स, पी का आ जाएगा, ठीक है, पी स्मॉल ले लेने आप, RINC, उस बाद देखो आई रिपीटिड है, मैं दोबारा नहीं लिखांगी इतने आई, ठीक है। पी भी रिपीटिड है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, ए लिखोगे एल लिखोगे इस तरीके दे नाल, ठीक है। स्टूडेंट्स इतने कैपिटल वाला भी लिख सकते हैं, जो तुहानूं गिवन कैपिटल होए तो तुसीं कैपिटल लैट सकते हो, अदरवाइज नहीं लैने हैं, ठीक है, अदरवाइज स्मॉल लैटर्स ही यूज़ करते हैं आप इदा। उस तो बाद नैक्सट बच्चे कॉन्सैप्ट आ जाता है, कॉन्सैप्ट ऑफ बिलोंग टू दा कॉन्सैप्ट साढ़े कोल इत्थे आ जाता, ठीक है। बिलोंग टू दा कॉन्सैप्ट इत्थे की हैगा साढ़े कोल आ जाता कि जिवें मान लो तुहानूं इत्थे लिखिया होएगा कि ए एक इदां दा एक मान लो तुहानूं सैट गिवन आ, मैं वही वाली एग्जाम्पल है कि सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तुहानूं। बिलोंग्स टू का मतलब मान लो कॉन्सैप्ट आएगा A इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, मान लो बिलोंग टू लिखिया। जिवें मैं कहां कि जिवें मैनू कोई कहे कि मैं कोई तुहानूं जिवें आपां बेसिकली मैंशन कर दीदा कि हाँ ये बंदा रिच फैमिली नूं बिलोंग करदा, रिच फैमिली नूं बिलोंग करन दा मतलब हुंदा कि इहदा रिच फैमिली दे नाल संबंध है, ये रिच फैमिली दे विच इंकलूडिड है, या जिवें तुसीं अपनी कास्ट नूं इंकलूड कर दिंदे हो कि कोई परसन है वो इस कास्ट नूं बिलोंग करदा, मतलब वो इस कास्ट दा मैंबर है, ठीक है। तो मतलब तो यही होंदा ना। अगर हुण मैं इत्थे अगर लिखदी हां कि 1 बिलोंग टू ए, सब तो पहले तो एक साइन नोट कर लो इस तरीके दे नाल, 1 इस तरीके दे नाल पाना ई नहीं गवांगे पर इस तरीके दे नाल कहो, दिस इज़ अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा कि 1 की है बिलोंग्स टू ए, कि 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ 2 ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ मतलब 2 ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਲੈਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है जी। इनू एक समझना है कि बिलोंग तो बिलोंग टू का की मतलब होंदा वा, 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके के नाल तुसीं लिख सकते हो कि 3 भी ए नू बिलोंग करेगा, सिंपल शॉर्ट दे विच 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 5 भी ए नू बिलोंग करता वा, 7 भी ए नू बिलोंग करता, 9 भी ए नू बिलोंग करता, ठीक है। अगर मैं कहां 10 तो 10 ए नू बिलोंग नहीं करता, इस तरीके के नाल, ठीक है। ये तो आनी चाहिए चीज़ें वाली। नैक्सट इस द बच्चे देखिए मैथमैटिकल सैट होंगे, किहड़े सैट होंगे, आई थिंक तुसीं ऑलरेडी भी बड़ी बारी पढ़ के आ चुके हो लोअर क्लासिस दे विच। सब तो पहला सैट बच्चे नैचुरल नंबर का आंदा वा सैट, ठीक है। तुहानूं सब नूं पता ही होगा नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, 1 तो स्टार्ट होंगे, ठीक है। याद की रखना इनू एन दे नाल रिप्रेजेंट करीदा, बिकॉज बहुत बार उन्होंने नोटेशन यूज़ करनी है, पर नोटेशनस नूं बेसिकली आप इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर च ध्यान रखना वा एन, ठीक है। एन के नाल नैचुरल नंबर नूं डिनोट करना। अगर किते भी लिखा हो कि इंटीजर्स आ, इंटीजर्स का मतलब होंदा है कि 1 है, अगर मैं इत्थे नंबर लाइन स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके के नाल आई दी ना 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज -1 -2 -3
-4 ठीक है। इस तरीके के नंबर लाइन लैने इत्थों तक बच्चे की बन जाते हैं नैचुरल नंबर। अगर 0 इंक्लूड कर लो तो स्टूडेंट्स की बन जाता होल नंबर ठीक है। ऑल ऑफ अगर मैं लै लवां नैगेटिव्स वाले भी इंक्लूड कर लो तो साढ़े कोल की बन जाते हैं इंटीजर्स Z ठीक है। सो सैट ऑफ द इंटीजर्स जिहदे नैगेटिव 0 भी इंक्लूडिड होंदा ते पॉजिटिव भी इंक्लूडिड होंदे उन्होंने की कहते हैं आपां इंटीजर्स। सो इट इज़ डिनोटेड बाय द Z। ये भी याद रखना, नोटेशन याद रखनी है ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज द नेगेटिव इंटीजर्स, दिस इज द 0। ऑलरेडी लोअर क्लासेस से तुसी करके आए हो, सिर्फ एक बार रिपीट कर रही हैं। रैशनल नंबर भी तुहानूं पता किहड़ी फॉर्म दे विच P upon Q दी फॉर्म दे विच हुंदे, दैट इज़ द रैशनल नंबर। उन्होंने आपां Q दे नाल रिप्रजेंट करांगे। इररैशनल नंबर नूं बच्चे आपां T दे नाल करांगे। ये नोटेशन तुसी याद रखनी है ठीक है, यूज़ होएगी। उस तो बाद रियल नंबर्स नूं बच्चे R दे नाल सारे नंबर्स नूं कलैक्ट करके एक जिहड़ा वड्डा वाला सैट बनदा दैट इज़ द रियल नंबर्स ओके। यह आ गया। नाउ नैक्सट इज द सैट ऑफ द होल नंबर्स। सैट ऑफ द होल नंबर दे विच की आंदा 0 आफ्टर दैट 1 2 3 4 0 इज़ इंक्लूडिड बेसिकली ठीक है। तो इस तरीके दे नाल आपां इहनूं कर्ली ब्रैकेट दे विच आपां इक इहदा सैट बना लिया 0 1 2 3 4 5 ठीक है। हुण अच्छा भी चैक कर लो कि ये सैट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। देखो स्टूडेंट्स मैनू दसो कि नैचुरल नंबर अगर मैं कहां नैचुरल नंबर तो तुसीं हुण तक सिर्फ नंबर्स ही पढ़े तुसीं उहनूं कदी सैट दे नाल नहीं देखा भी ये सैट भी बनता है कि नहीं बनता। देखो नैचुरल नंबर के किहड़े एलीमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जितों तक मर्जी ठीक है ना। हुण इट इज़ अ कलैक्शन ऑफ किद्दां चैक करोगे कि ये सैट हैगा कि नहीं हैगा। दो ही चीज़ां वैल डिफाइंड ते डिस्टिंक्ट। वैल डिफाइंड है ठीक है ना, सानू पता है कि 1 2 3 4 इट मीनस कि डजन वैरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन कि किसी को भी पुछ लो कि नैचुरल नंबर यही रहेंगे दुनिया के किसी भी कोने में जाके नैचुरल नंबर चेंज नहीं होंगे। इट मीनस इट इज़ वैल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं हो रहे 1 2 3 4 तो लैके हर एलीमेंट एक दूसरे तो डिफरेंट है। इट इज़ नॉट रिपीटेड। सो इट इज़ अ सैट ऑफ द नैचुरल नंबर। सारे भी सारे ही की बनते हैं सैट बनते हैं ठीक है जी। इनू इन्हों की नोटेशनस के नाल रिप्रजेंट करीदा। अच्छा एक गल होर जिवें मान लो तुहानूं कई बार लिखा होगा कि इट बिलोंग्स टू द पॉजिटिव रियल नंबर्स तो वो नोटेशन ऐ होंदी है आर के उपर ना कुछ इदा करके पॉजिटिव पा देंगे कि रियल नंबर्स तो लैने आ बट कई किसी टाइम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे किसी सिर्फ पॉजिटिव वाले लैने आ। किसी क्वेश्चन इदा मैंशन होएगा तुहानूं या किसी टाइम कह देंगे कि नैगेटिव रियल नंबर्स इट मीनस आर नैगेटिव ठीक है। या कभी कह देंगे कि इंटीजर्स भी लिख देंगे कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इट मीनस Z पॉजिटिव या Z नेगेटिव कि नेगेटिव रियल नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड ठीक है। सो इस तरीके के नोटेशनस होंदियां उन्होंने भी तुसी मैथमैटिकल सैट है उन्होंने भी तुसी ध्यान विच रखना ठीक है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू। देख लीजिए जी आप सब कुछ एग्जाम्पल्स। राइट द सोल्यूशन सैट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म ठीक है। मान लो रोस्टर फॉर्म के उन्होंने इहदा की कहते हैं सोल्यूशन सानू फाइंड आउट करने के लिए क्या आ गया इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। बच्चे ये जोड़ा जो भी कॉन्सैप्ट सी मैं तुहानूं दस दिता एग्जाम्पल करते हैं हुण ठीक है। ਇਹਦਾ बच्चे सोल्यूशन देखो सोल्यूशन सिंपल जी गल है ਇਹਦਾ सोल्यूशन लिखना रोस्टर फॉर्म च ਇਹਦਾ मतलब तुहानूं पता लग जाना चाहिए कि मैं कुछ नंबरिंग की फॉर्म के मैनूं कुछ आंसर देना है मैं ठीक है। देखो कुछ आप इस तरीके नाल लै लैंदे आ कि ਇਹਦਾ इनू तुसी सॉल्व करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। आई होप कि तुसी ये फैक्टर्स ये बना पाओगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इनू सॉल्व कर लो सिंपल क्वाड्रेटिक आ बन जाएंगे इक्वल टू 0 एक्स की की वैल्यू आ गई 1 ते -2। रोस्टर फॉर्म के लिखने का मतलब है कि तुसी इनू अगर यदा नाम तुसी ए दे दो एक सैट का रोस्टर फॉर्म के सिंपली की लिखोगे 1 -2 दिस विल बी योर आंसर। ब्रैकेट पा दी कर्ली ब्रैकेट इन्हों के जो सोल्यूशन सी सेंटर च कॉमास के नाल सैपरेट कर दिते एंड ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रजेंटिंग रोस्टर फॉर्म। दिस इज़ रोस्टर फॉर्म कह सकते हो या टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है ठीक है जी। नैक्सट एग्जाम्पल राइट द सैट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। सैट की गिवन है देखो ध्यान नाल x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर इज़ लैस दैन 40 कि x हैगा वा तो x का जो स्क्वेयर करते हैं x की है मैं दसा ना कि x अगे उसकी प्रॉपर्टी मैंशन होगी कि x की हैगा ठीक है ना। सो x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वेयर इज़ लैस दैन 40 कि वह जो आप स्क्वेयर करांगे ना यदा मतलब कि तुसीं ये वेखना है कि रोस्टर फॉर्म या वो सोल्यूशन वाले सैट के किहड़े एलीमेंट आने चाहिए मेरे को तुहानूं इत्थों पता लगता है एलीमेंट किहड़े आने चाहिए ठीक है। हुण तुसीं देखो एक्स स्क्वेयर लैस दैन 40 है यानी कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लैना वो मैं स्क्वेयर करदी वेखनी कि 40 तो लैस किदा आंदा। अगर मैं 1 करा तो 1 का स्क्वेयर 1 2 करा 2 का स्क्वेयर 4 3 का स्क्वेयर 9 4 का स्क्वेयर 16 ठीक है। सो 5 का स्क्वेयर 25 6 का स्क्वेयर 36 7 का करा तो 49 आ जाता
ठीक है। बट मैंने उही वाले एलीमेंट लैने जिन्हों का स्क्वेयर 40 तो लैस होना चाहिए। यदा मतलब कि नंबर आ जाएंगे सोल्यूशन सैट च कि आ जाएंगे। अगर मैं लैटर से मैं बी का नाम दे देवां इनू, ठीक है, कि एलीमेंट आएंगे स्टूडेंट दसो। इत्थे 1 2 3 4 5 तो 6 मतलब 6 तक एलीमेंट का स्क्वेयर करोगे तो 40 तो लैस आएगा। जो तुम 7 ले लिया तो 40 तो ग्रेटर हो जाता। यह की होगी साढ़े को रोस्टर फॉर्म, आपां उहदा एक सैट बना दिता रोस्टर फॉर्म च, ठीक है स्टूडेंट्स। इदां करके ये सेकेंड एग्जाम्पल होगी। हाँ जी, थर्ड एग्जाम्पल इज़ कि राइट द सैट इन द सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म के स्टूडेंट आप बनाना। हुण देखो उल्टा आ गया ऑपोजिट कि ऑलरेडी टैबुलर फॉर्म उन्होंने गिवन है तो सैट बिल्डर तुसी बनाओ उन्होंने क्या आया, ठीक है। सो किद्दां बनाओगे, एक सैट गिवन है सैट बिल्डर फॉर्म के गिवन है तो तुहानूं देखो की नज़र आ रहा 1 4 9 16 25। इट मीनस जो मैं ऑबजर्व कर रही हूँ कि गिवन है कि नैचुरल नंबर कुछ गिवन है उन्होंने स्क्वेयर्स मैंशन है। इट मीनस तुसी की लिख सकते हो ए इज़ अ सैट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स नू बिलोंग की करवाना, एक्स की चीज़ हैगी है, एक्स की की प्रॉपर्टी लिखोगे कि एक्स इज़ अ स्क्वेयर ऑफ द नैचुरल नंबर। कि सिंपल एक्स की गवा नैचुरल नंबर का स्क्वेयर है। देखो इन्होंने ना कि इतने अप टू सो ऑन पाया होया, ये भी नहीं दसिया भी कितों तक एक्स लेना, भी 5 तक स्क्वेयर मैंशन है कि 10 तक मैंशन है ना, बिकॉज इतने अप टू सो ऑन पाया। इट मीनस यह चीज़ कंटिन्यू हो रही है, पता नहीं कितों तक इनफानाइट जा रही है, ठीक है ना। जिदा इनफानाइट एपी नहीं पढ़ी सी कि ये पता ही नहीं इनफानाइट, तुम ये नहीं लिख सकते कि एक्स इज द स्क्वेयर ऑफ नैचुरल नंबर 5 तक है गया अप टू 5, ये नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज, अगर मान लो इतने करके इन्होंने ब्रैकेट पा दी होंगी, ठीक है ना, फिर तुम लिख सकते थे कि एक्स इज द स्क्वेयर ऑफ नैचुरल नंबर अप टू 5 या लैस दैन 5, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। अगर इतने ब्रैकेट इदा पा देंगे, पर ये तो कंटिन्यू हो जा रहा, चली जा रहा, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू कैनॉट से दैट दिस इज द मतलब इनफानाइट सैट है, बहुत चली जा रहा मतलब, है ना। सो दिस इज द स्क्वेयर ऑफ द नैचुरल नंबर। या कि लिख सकते हो एक्स की हैगा वै अगे एक्स की प्रॉपर्टी इज़ अ एन द स्क्वेयर, कि वेयर एन बिलोंग्स टू अ नैचुरल नंबर, कि एन है नैचुरल नंबर आई जाएंगे उन्हों का स्क्वेयर करी जाओ तो इतने लिखी जाओ, ठीक है। एन की गा वा नैचुरल नंबर, मतलब नैचुरल नंबर के एलीमेंट लो 1 आ गया, 1 लिया, मान लो एन नैचुरल नंबर तुसी एन ना सैट के 1 2 3 4 5 6 एलीमेंट ए वाले है ले आ, इतने लिखे उन्होंने स्क्वेयर किया, 1 का स्क्वेयर किया 1, 2 लिया 2 का स्क्वेयर किया 4, 3 लिया 3 का स्क्वेयर किया 9, 4 लिया 4 का स्क्वेयर किया 16। सो इन दिस वे यू कैन राइट इट, ओके। नैक्सट देखो ये थोड़ी बच्चे की बन गई है, सैट बिल्डर फॉर्म बन गई है, ठीक है जी। सो नैक्सट इज़ द नैक्सट तुम देख सकते हो स्टूडेंट्स, राइट द सैट इन द सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म के इन्होंने लिखना, ऑबजर्व करो बच्चे की गिवन है तुम्हें, आप किदा यदा सैट बना सकते हैं, पहले ऑबजर्व करना पैंदा तुम्हें, ठीक है। जिमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, देखो जो मैं ऑबजर्व कर रही हूँ कि ऊपर वाला जो नंबर गिवन है ना, लाइक नहीं नीचे वाला जो नंबर गिवन है वो ऊपर वाले नंबर तो एक ज़्यादा है, 1 ग्रेटर है। जिमें 4 है तो 5 है, 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है, एक नंबर की है ग्रेटर। अगर मैं ऊपर वाले नंबर को देखो इन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया, ऊपर वाले नंबर मान लो n मान लिया तो नीचे वाला नंबर n+1 लिख सकते हैं ना, एक ज़्यादा ऊपर वाले नंबर तो एक ज़्यादा, तो वो तो यह भी मैंशन करना कि n की है, तो प्रॉपर मैंशन करना पएगा इतने, ठीक है ना, कि वेयर n इज़ अ नैचुरल नंबर एंड 1 तो n की वैल्यू जी की है 1 तो लैके n तक है, या तुम लिख सकते हो n इज़ अ नैचुरल नंबर, बिकॉज देखो नैचुरल नंबर का ही गिवन है ना, कोई हो दूसरे नंबर तो नहीं ना गिवन है, लाइक आप इंटीजर्स तो नहीं, पॉइंट डेसिमल वाले नंबर तो नहीं गिवन है। मान लो मैं इतने कहा कि 1.5 है थले कोई 2.5 इदा का तो नहीं ना नंबर है, मतलब नैचुरल नंबर ही गिवन है ना कि 1 2 3 4 5 वाले वो वाले नंबर्स गिवन है। सो इट मस्ट बी मैंशन कि n तुम इतने की लै रहे हो, ठीक है। वेयर n नूं आप नैचुरल नंबर लिखना, तुम इतने यह भी लिख सकते हो कि n बिलोंग टू n, मतलब वड्डा कैपिटल N इज़ द नैचुरल नंबर एंड n किनू बिलोंग करता 1 तो 6 तक बिलोंग करता। तुम ये भी लिख सकते हो कि एंड वेयर n इज़ अ नैचुरल नंबर अप टू कितों तक लै रहे हो तुसी, n इज़ अ नैचुरल नंबर अप टू लिख लो अप टू 6, ठीक है, कि 6 तक ले, 6 तो अगे नहीं है, ठीक है ना। n इज़ अ नैचुरल नंबर अप टू 6 तक आप लिया, ठीक है। या तुम लिख सकते हो कि n इज़ अ नैचुरल नंबर एंड इज़ लैस दैन 7 का मतलब 6 तक ही हो गया, ठीक है, यह भी लिख सकते हो। या एक वाली पा सकते हो कि n जोड़ा 1 तो 6 के विचकार लाई करता है, कि 1 तो ग्रेटर है एंड 6 तो छोटा, इदा लिख सकते हो,
ठीक है। सो नैक्सट इज़ दी एवली एग्जाम्पल है। एवली एग्जाम्पल देखो कहते कि मैच करके दिखाओ कि उन्होंने मतलब सैट बिल्डर के सामने रोस्टर फॉर्म कि बनती पई। देखो प्रिंसीपल आ, देखो एक्स इज़ अ लैटर ऑफ द वर्ड प्रिंसीपल, ठीक है। तुसीं इत्थे नाल देख लेना कि वर्ड्स रिपीटिड नहीं गए, देखो ध्यान नाल देख लो PIRNCIPAL, ठीक है। वर्ड्स जिहड़े आ रिपीटिड नहीं है। देखो इन्होंने एक बारी ही पी लिया हुआ, पी रिपीटिड सीगा, आई भी एक बारी लिया, रिपीटिड नहीं लेने। ओके देखो जीरो किस तरह आएगा, देखो जीरो आई थिंक इन्ना मैच कर दी, ए तो ये मैच हो गया। एक्स इज़ अ इंटीजर एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इतनू अगर तुम सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 0, सो 0, ठीक है। हमेशा याद रखना कि एक सैट की फॉर्म के चाहे जीरो भी लिखना, कला जीरो लिखो, कला जीरो बच्चे का कोई मीनिंग नहीं गा, कला जीरो ਇਹਦਾ कोई मीनिंग नहीं गा, इट मस्ट बी रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना, कला जीरो कभी भी कोई सैट नहीं बनाता, कला जीरो इज़ जीरो ओनली, ठीक है। इस तरीके के। नैक्सट इज़ द देखो यह देख लेने 1 2 3 6 9 11 9 18। एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है ना। 18 के डिवाइजर्स है ना सारे 1 2 3 6 9 18। सो यह यदी सैट बिल्डर है, ये टैबुलर है, टैबुलर नू सैट बिल्डर ना मैच कर दो। एक्स इज़ अ इंटीजर एंड x² - 9 इज़ इक्वल टू 0। अगर इनू सॉल्व करोगे कि आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू 9, इधर सोल्यूशन की बनते हैं +-3, ठीक है जी। सो ही लिखा +-3 मतलब 3 एंड -3 कर्ली ब्रैकेट्स के विच। और इतने देख लो, ये भी पॉइंट देख लो कि x की इंटीजर होना चाहिए ऑफकोर्स। अच्छा मान लो अगर इतने क्या होंगे कि x नैचुरल नंबर है तो नैचुरल नंबर तो 3 इंक्लूड ही नहीं होना सीगा, फिर यह सैट गलत हो जाना सीगा, ठीक है ना। इंटीजर मैंशन है तां करके यह सैट ठीक है, ठीक है ना। अगर कला नैचुरल नंबर क्या होंगे ना फिर कला 3 आना सीगा, माइनस नू आपां इंक्लूड नहीं करना सीगा, ठीक है। सो मतलब एक वर्ड का तुसीं इत्थे पॉइंट का ख्याल रखोगे कि की दिता है, की लैना है मैं। ओके सो आई हैव डन, वी आर डन विद एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो ये क्वेश्चन जिहड़े सिंपल है कि फर्स्ट दे विच तुसीं दसना कि सैट है कि नहीं है, सिंबल यूज़ करने हैं, रोस्टर फॉर्म बनानी है, सैट बिल्डर बनानी है, ठीक है। सो जस्ट डू इट, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू कैन ईजिली डू इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.1।